میرے ساتھ نکالیے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 28واں باب ہم پڑھیں گے۔ اس کی پہلی آیت مقدسہ سے کوئی بھی بھائی سامنے آ جائے اور بلند آواز میں پڑھنے میں رہنمائی کر دیں۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، آج ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 28واں باب پہلی آیت سے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پھوپ اٹھتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئے، اور دیکھو ایک بڑا بونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورت سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا اسلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اپنے سروں کو چند لمحوں کے لیے جھکائیں گے۔ قادر مطلق خدا یسوع مسیح کے نام میں ہم آپ کے حضور آتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں آج یہ موقع بخشا کہ ہم آج آپ کے حضور آ سکے، آپ کے نام کو جلا دے سکے۔ پاک مہربان خدا، التجا دعا اور فریاد کرتا ہوں آج خداوند پاک مہربان خدا مجھ ناچیز نالائق اور نکمے اور اگنے خاکسار کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرنا اور اپنے لوگوں کو بہت برکت دینا۔ خداوند جتنے آئے ہیں ان سب کو برکت دے، بلیس کر یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تشریف رکھیے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جی تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کتنے لوگوں نے حوالے کو غور سے سنا ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ یہاں پر کیا کچھ پڑھا گیا ہے؟ جی سب کو یاد ہے؟ اگر آپ آتے ہیں حوالہ ہی نہیں غور سے سنتے تو پھر باقی جو بیان کیا جاتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی خادم مرکزی آیت کو پڑھتا ہے جس پر اس نے پریچ کرنا ہوتا ہے، اس مرکزی آیت کو غور سے سنا کریں، اسے سمجھا کریں، پھر آپ کو باقی بھی سمجھ آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر جب سمجھ آئے گی تو پھر جیسے اکثر بھائی برونو بھی یہ کہتے ہیں کہ جن کو سمجھ آتی ہے چرچ میں آپ ہاللیلویہ کہہ سکتے ہیں، آمین کہہ سکتے ہیں، ایسا ہی ہو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آج آپ نے غور سے سننا ہے۔ آج ہم اس بیک گراؤنڈ کو دیکھنے جا رہے ہیں جس بیک گراؤنڈ کو دنیا بغیر سمجھے ہی مناتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے لیے ایک عید بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس عید کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اگر مقصد ہماری زندگی میں نہیں ہے تو میرے عزیز بہن اور بھائیوں مجھے بتائیں کہ ہمیں اس عید کا منانے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر آپ کے اندر خدا کے کلام کی تعظیم نہیں ہے، عزت نہیں آپ کرتے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کیا فائدہ ہے ہمیں ان چیزوں کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ میرے عزیزوں، جو عید احبار 23 باب کے اندر دی گئی، وہ یسایہ 1 باب کے اندر خداوند کہتا کہ مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں مکسنگ کر لی تھی۔
खुदा के कलाम को निकाल के बाहर कर दिया, अपनी रसूमात को, अपने कल्चर को, अपनी रवायात को उन्होंने ऐड कर लिया अपनी इबादत के अंदर, हर उस बात के अंदर मेरे अजीजों जो खुदा ने उन्हें सिखाई थी। इसलिए खुदा ने दुख किया उनकी इन हरकतों से, और उस वक्त बहुत सारों को सजा भी मिली। आज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, समझेंगे। अगर आप इन हवालों को पढ़ना चाहें, मेरे अजीजों लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन। अब बहुत सारे आगे भाई यहाँ खड़े भी ये कह रहे थे कि हम जो सबत मनाते हैं, ये आज का दिन सबत का दिन नहीं है, ये इतवार का जो दिन है ये सबत का दिन नहीं है। सबत का दिन कौन सा है? सबत का दिन हफ्ते का दिन है। हम इतवार क्यों इतवार को इकट्ठे होते हैं, इबादत करते हैं, ये बातें आज हम सीखेंगे, क्योंकि आज हम इतवार वाले दिन यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग जो हैं वो दिनों को मुकद्दस जानते हैं, और बहुत सारे मुस्लिमों को मैं दुख के साथ ये कहता हूं, वो इतवार को इबादत करते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि हम इतवार को इबादत किस लिए करते हैं, तो क्या ये दुख की बात नहीं है? मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये दुख की बात है। आप पूछे भी, आप सबत का दिन तो हफ्ता है, आप इतवार वाला दिन क्यों मनाते हैं, आप इतवार वाले दिन क्यों इबादत करते हैं? तो फिर अगर उनके पास जवाब नहीं है, तो जिस खुदा ने इतवार के दिन मेरे अजीजों जी उठ के आपको इस बात का ये एक आजाद दिया, ये ब्लेसिंग दी, ये बरकत दी कि आप क्या करें, आप मेरे अजीजों उसके जी उठने को हमेशा मनाते रहें, तो क्या आपको यही नहीं इल्म होगा? तो क्या फायदा, मुझे ये बताएं। बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है, वो जुम्मे को मुकद्दस जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते को मुकद्दस, यहूदी जो है हफ्ते को सबत का दिन। चलें, ये बातें भी हम आज थोड़ी सी सीखेंगे। अगर आपने हफ्ते के पहले दिन को देखना है कि हम क्यों मनाते हैं, ये बातें आपके अंदर रच बस जानी चाहिए, ये आपकी तालीम होनी चाहिए, ये आपके अंदर ये बातें ऐसे हों कि जैसे आपके दिल की तख्तियों पर लिख दी गई हैं। जैसे मेरे अजीजों, बनी इसराइल वाले किताबे मुकद्दस को बहुत ज्यादा जानते थे, उन्हें सिखाया जाता था, उन्हें समझाया जाता था, और वो समझते भी थे। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो चीज आपको दी गई है, जो बरकत आपको दी गई है, अगर उनके पास होती तो शायद यीशु मसीह को भी ना आना पड़ता। आपको रूह कुदस दिया, ये फजल की बात है मेरे अजीजों। वो अल्फाजों के ऊपर कायम थे, आप तो रूह कुदस के ऊपर कायम है। हालेलुया। और याद रखिए, जब आप झुक जाते हैं तो रूह कुदस आपके लिए खड़ा रहता है। भाई ब्रैनम कहते हैं, जब आप झुक जाते हैं तो रूह कुदस नहीं झुकता, रूह कुदस खड़ा रहता है। और सबत के ऊपर मेरे अजीज बहनों भाइयों, भाई फ्रैंक ने पूरा एक ब्रोशर लिखा है, पूरी तालीम है। अगर आप उसे पढ़ लें तो मैं कहता हूं किसी बात का कोई डाउट ही नहीं रहता कि हम इतवार को क्यों इबादत करते हैं। उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है कि यहूदी हफ्ते को मानते हैं और सबत को मानते हैं, हम इतवार को क्यों इबादत करते हैं, और मुस्लिम जो है वो जुम्मे को मानते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई उस बात के ऊपर, उस बात पर भी चलेंगे। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन, याद रखिए हफ्ते का पहला दिन जो इतवार है, यहूदी इतवार को हफ्ते का पहला दिन मानते हैं, ये याद रखिएगा। यहूदी लोग जो हैं, ठीक है, जो इस्राएली लोग हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिनके खुदा को हमने अडॉप्ट किया है, जिनका खुदा मेरे अजीजों हमने ले लिया, बल्कि वो खुदा जो पूरी दुनिया का खुदा था, लेकिन उसने एक कौम के जरिए से मुतारफ अपने आप को करवाया। उस खुदा को मानने वाली जो कौम है, वो इतवार को हफ्ते का पहला दिन मानती है। हालेलुया। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें, और यीशु मसीह जब उन पर जाहिर हुए तो ये हफ्ते का पहला दिन था। क्या था जी? हफ्ते का पहला दिन था। अगर आप इसको मजीद पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अजीज बहनों को, ये बाकी अनाजील के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। आप मरकज की अंजील को पढ़ेंगे तो 16वें बाब के अंदर आप उसकी पहली 8 आयात पढ़ेंगे तो आपको हफ्ते के पहले दिन का और ये जो वाक्य हमने पढ़ा है ये आपको मिलेगा। अगर आप लूका की अंजील को पढ़ते हैं, 24 बाब को पढ़ते हैं, 24वें बाब को, तो मेरे अजीज बहनों उसकी पहली 8 आयात 10 आयात पढ़ें तो फिर हफ्ते का पहला दिन और ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। आप यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, बेशक लिख लें आप हवाले, यूहन्ना की अंजील आप पढ़ते हैं, उसका 20वां बाब उसकी पहली आप 10 आयात पढ़ें तो हफ्ते का पहला दिन आपको फिर वहां पर मिलेगा। हफ्ते के दिन की डिटेल हम आगे चलकर भी देखेंगे, क्यों हफ्ते का पहला दिन मेरे अजीज बहनों भाइयों हम सेलिब्रेट करते हैं, हर इतवार क्यों हम इबादत करते हैं।
क्यों हम हर इतवार यीशु मसीह का जी उठना। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, जो लोग ईस्टर मुबारक ईस्टर मुबारक ईस्टर मुबारक करते हैं, उन्हें इल्म है कि ईस्टर क्या था, ईस्टर कौन है? मेरे अजीजों, कुछ जर्मन यूरोपियन लोग जो हैं वो ईस्टर्न देवी को मानते थे, अस्तरात देवी जिसे हम कहते हैं, और ये बहार के महीने में उसकी ईद मनाया जाती थी। आपको पता है कि नमरूद का, तैमूज का और अस्तर देवी का, आप सबको ये माजरा पता है, आप सबको इस बात का इल्म है मेरे अजीजों। और फिर वो क्या था, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी डॉक्ट्राइन है, उन्होंने एक तालीम बनाई है। ये जब रोम कन्वर्ट हुआ है मसीहत के अंदर, जब रोम कन्वर्ट हुआ है मसीहत के अंदर, तो वो अपने रसूमात पीछे छोड़कर नहीं आया, वो अपनी ईदें पीछे छोड़कर नहीं आया, वो अपनी ईदें भी मसीहत में ले आया। जब सरकारी मजहब हुआ तो सब पर ये थोप दी गई कि आपने क्या करना है। और ये याद रखिएगा, ये चौथा महीना है ना, चौथे महीने के अंदर सिर्फ हमारे ही लोग ईस्टर नहीं मना रहे होते, यहूदियों की ईद फसा भी होती है। इस चौथे के अंदर उनकी क्या कहते हैं, बैसाखी भी होती है सिखों की, और उनकी होली भी होती है मेरा ख्याल है हिंदुओं की। और इस तरह बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं, बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं, बुत परस्त लोग हैं, वो इस महीने के अंदर, क्योंकि बहार का मौसम भी है मेरे अजीजों, इस महीने के अंदर वो क्या करते हैं, बहुत सारी अपनी ईदें मनाते हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज नहीं है मेरे अजीज बहन और भाई, जिनका तस्वर हमारे लिए नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो एक बुत परस्त लोग हैं, वो ये काम करते हैं। इसी तरह मेरे अजीज बहन भाई, जब रोम ने जंग लगा दी मसीहत के अंदर, तो फिर मसीही लोग भी इस ईद को मनाने लगे। और फिर मेरे अजीजों, ये आप पढ़ लें, रवायती मसीहत के अंदर भाई फ्रैंक ने इस बात को किया। अगर आप 63 नंबर सफ़े को पढ़ेंगे तो 998 के अंदर उस साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो हम ये सोग हम मनाते हैं, गुड फ्राइडे हम मनाते हैं, ठीक है, ये जो फिर इसके बाद ईस्टर आ जाती है, इसकी कोई लॉजिक बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद नहीं है। देखें, हम नबियों और रसूलों की नींव पर तामीर किए गए हैं। किस पर तामीर किए गए हैं? नबियों और रसूलों की नींव पर तामीर किए गए हैं। और याद रखिए, अगर हम नबियों और रसूलों की नींव जो बाइबल मुकद्दस है, कलाम है, उस पर भाई इमरान इसको उठा रहे, वो लिख रही है तो आप उठा लें जी। जी, हम नबियों और रसूलों की नींव पर तामीर किए गए हैं। और नबियों और रसूलों की नींव क्या है? खुदा का कलाम है। समझ आ रही है? किन्हों किन्हों समझ आ रही समझ जी। नबियों और रसूलों की जो नींव है वो इस कलाम के ऊपर रखी गई है, किसी डॉक्ट्राइन के ऊपर नहीं रखी गई, किसी तंजीम के ऊपर नहीं रखी गई, किसी मेरे अजीज बहनों और भाइयों किसी भी मिशन के ऊपर नहीं रखी गई, किसी भी मंसूबे के ऊपर नहीं रखी गई, कलाम के ऊपर रखी गई है। और वो कलाम यीशु मसीह है। मुजस्सम कलाम क्या है? यीशु मसीह है। आप यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ है। वो मुजस्सम कलाम है। तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो इसमें दीनदारी नहीं कि इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा ने जिस्म इख्तियार किया। मेरे अजीज बहनों, वो मुजस्सम कलाम है। इस कलाम के ऊपर तो फिर जब जो बातें कलाम हमें सिखा रहा है, हम उससे इधर होंगे तो या उधर होंगे तो क्या हम कलाम के स्टूडेंट होंगे? तो क्या हम बाइबल के स्टूडेंट होंगे? आपको समझ में आ रही है? इसलिए जब आप चर्च में आते हैं, हम क्या करते हैं? जब चर्च में आते हैं मेरे अजीजों, हम इस ईमान के साथ आते हैं कि यहाँ पर हम अपने खुदावन से मिलेंगे। क्योंकि जब कलीसिया का मजमा जमा होता है तो क्या खुदा अपनी जमात के अंदर मौजूद होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो मेरे अजीज बहनों भाई, जो खुदा अपनी जमात में मौजूद होता है तो फिर खुदा की बातों को छोड़ के तो आप कोई और बातें लेंगे अपनी जिंदगी में, तो क्या बरकत मिलेगी? इसलिए आज अपने पल्ले ये बात बांध लें।
आज अपने पल्ले ये बात बांध लें, खुदावन के हुजूर आए तो खुदावन से बरकत लेने के लिए, बरकत लेने के लिए आए। बहनों को जो कहा जाता है कि आप अपने मेकअप, ये ज्वेलरीज और ये सारी चीजें, ये जब आप इनको साथ लेकर आएंगे तो क्या खुदा आपसे खुश होगा? कलाम की नहीं समझ आएगी। कलाम को समझने के लिए आप यहाँ पर आए, खुदा से बरकतें लेने के लिए यहाँ पर आए। ऐसा नहीं है कि आप खुदा के म्यार पर नहीं होंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में आ जाएगा, खुदा आपके अंदर आ जाएगा। मेरे ये जो शोर मचाने वाले, ये जो कहने वाले कि हम ईद मना रहे हैं, ईद का मकसद भी नहीं जानते, यीशु मसीह की आमद का मकसद, उसके मरने जी उठने का मकसद नहीं जानते, तो क्या फायदा? उसने तो हमारी गुनाहों के लिए अपनी जान दी, हमारी बीमारियों के लिए अपनी जान दी है। मेरे जो उस पर सियासत हुई है हमारी खताओं के लिए। तो अगर ये सारी चीजें हम में मौजूद है तो फिर यीशु मसीह का तो कफारा बेकार चला गया। अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो फिर ये कफारा तो बेकार है। मेरे दीदो, यीशु मसीह को जिंदगी मिले, हमें नहीं बरकत मिलनी है। इस बात को समझे। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, आपने दुनिया को हिसाब देना है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा ना तो फिर दुनिया नहीं बचा सकेगी। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो दुनिया नहीं बचा सकेगी आपको। दुनिया नहीं आपको उठाकर लेकर जाएगी, आपको उठाकर खुदा का कलाम लेकर जाएगा। हालेलुया। कलाम उठाकर लेकर जाएगा जो आपकी जिंदगियों में होगा। तो कोई पता नहीं यीशु मसीह कब आ जाए। मेरे चीजों हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन, सबत के बाद हफ्ते का पहला दिन आज है। आज इतवार का जो दिन है ये सबत के बाद है, हफ्ते का पहला दिन। और इस दिन हम इबादत इसलिए करते हैं कि आज के दिन मेरा और आपका यीशु मसीह जी उठा था। हालेलुया। अब इतवार वाले दिन हम इबादत इसलिए करते हैं कि इतवार वाले दिन मेरा और आपका यीशु मसीह जी उठा था। और हम सिर्फ अप्रैल के अंदर यीशु मसीह का जी उठना नहीं मनाते, हम हर इतवार हर संडे यीशु मसीह का जी उठना मनाते हैं। हम मिसाल वाले मसीही नहीं हैं, हम एवरीडे वाले हैं। हम हर रोज उसके नाम को जलाल देंगे और हमारे इतवार उसका जी उठना मनाते हैं। और जो इतवार वाले दिन यीशु मसीह के पास नहीं आता, जो इतवार वाले दिन यीशु मसीह के कदमों में नहीं आता, जो उसकी प्रेजेंस में, जो उसकी हजूरी में नहीं आता, वो उसके जी उठने का इनकार करता है। याद रखिए। आपको पता है कि सबत के लिए क्या अहकामात थे? सबत के लिए क्या अहकामात थे? ये पैदाइश से सिलसिला शुरू हुआ। और पैदाइश जब आप पढ़ते हैं पहले बाप के अंदर, तो खुदावन ने 7 दिन में क्या किया? दूसरे बाप के अंदर 7 दिन में उसने 6 दिन में उसने काम काज किया और 7वें दिन उसने आराम किया और 7वें दिन को उसने बरकत बख्शी। और फिर हम देखते हैं जब उन्हें अहकाम दिए गए खुरूज 20 बाप के अंदर, तो क्या हुआ? पढ़ लेते हैं मेरे अजीजों। हम देखते हैं उनके लिए क्या हुक्म था। उनके लिए क्या हुक्म था कि वो अगर सबत ना मनाएं, अगर वो खुदा का जो पाक ठहराया हुआ दिन था, अगर वो उसे नहीं मनाते जिस तरह उसने कहा है, तो हम उन बातों को भी देखते हैं। मेरे साथ निकालिए खुरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। क्या करना? कौन सा सबत का दिन? इतवार का क्या सबत का दिन? अखा कान खोल के बैठो। यहां पर तुसी खादमा तो वट के अगे चले जाते हो, इंज कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी है मेरे जीव, जब खुदा किसी को यहां पर खड़ा करता है तो ऐसे खड़ा नहीं करता, ये याद रखें। जब भी किसी को खुदा अपने पुलपट पर, डाइस पर खड़ा करता है तो ऐसे नहीं खड़ा होता वो बंदा, जब तक खुदा की मर्जी ना हो। उन्होंने कहा किसकी मर्जी पे से तू कलाम सुनाता है, ये मौजे करता है, क्या करता है? यीशु मसीह से सवाल करने लगे। यीशु मसीह ने कहा मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान से था या जमीन से? वो अपनी मर्जी से बोलता था। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो खामोश हो गए। क्यों खामोश हो गए? वो दोगले सन। ये नहीं कि पता नहीं था, पता था। खामोश हो गए, दोगले सन।
انہاں کہا جو یوحنا دا کیا تے انہیں کہنا ہے کہ جناب پھر تسی لتا کیوں نہیں جے کیا ہے خدا دی مرضی دا نہیں ہے تے لوکاں نے سانو مارنا جے کیا آسمان تو نہیں تے پھر جناب انہیں لوکاں نے ساڈے تے الزام لانا جے کیا خدا دی طرفوں سی تو یہ کہے گا تسی لیا کیوں نہیں مانیا کیوں نہیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں اس لیے یسوع مسیح نے کہا انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ ملے یہاں پر آ کر بولنے سے پہلے اس کو پڑھو اسے سمجھو اسے سیکھو یہ ڈائس وہ جگہ ہے یہ ڈائس رنجشاں مکان والی جگہ نہیں ہے یہ ڈائس وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں آپ کی ہر بات کو معتبر مانا جاتا ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں اور آپ جیسی انہیں برکت یہاں سے دیں گے وہ پائیں گے جو کھڑا ہوتا ہے نا اس نے اس کا حساب دینا ہے یہ یاد رکھیے گا سو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سبت کا دن کون سا دن تھا کون سا دن تھا ہفتے کا دن تھا سبت کا دن ہفتے کا دن تھا اور ہفتے کے دن کے لیے اس نے کہا 8ویں آیت ہم نے پڑھی ہے اگر آپ پڑھتے ہیں 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں 20 باب کی تو لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین بھائی امید آپ سامنے آ جائیں حوالہ نکالا ہوا آپ نے جلدی سے آئیں حوالے آپ نے تیز نکالنے ہیں جی 11ویں آیت آپ سب نے نکال لیا جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں اپنی بائبلز اپنے ساتھ لے کر آیا کریں اپنی نوٹ بک اپنے ساتھ لے کر آیا کریں آپ کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہیں آپ خدا کی جماعت کا حصہ ہیں آپ خدا کی امت کا حصہ ہیں آپ خدا کی دلہن کا حصہ ہیں ہم یہاں پر آپ کو تنظیمی باتیں نہیں سکھائیں گے ہم آپ کی خوشنودی کے لیے نہیں یہاں پر کھڑے ہیں کہ تھوڑی مکھن لا کے خوش کر کے تے گھر بھیج دئیے اتنے بٹرنگ والا کام نہیں ہونا اتنے کلام سنایا جانا ہے جنہیں آنا ہے انہیں کلام سیکھنا ہے میری برکت لے نہیں آنا آپ نے اپنی برکت کے لیے یہاں پر آنا ہے جی 11ویں آیت کو تلاوت کر دیں کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا جی کیا ہوا جی خداوند نے کیا کیا 7ویں دن کو کیا کیا جی اور اسے کیا ٹھہرایا کس نے ٹھہرایا خدا نے ٹھہرایا آپ میرے ساتھ بھائی امید نکالیں 31 باب جی خروج ہم 31 باب نکالیں گے بھائی دان اس کو آپ لے کے نہ باہر چلے جائیں باہر بھی آپ کو آواز آ رہی جی نکال لیا 31ویں باب کی آپ پڑھیں 13ویں آیت مقدسہ سے یہاں چلے 12ویں سے پڑھ دیں اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا اس لیے سبتوں کو ضرور مارنا جی اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا کیا رہے گا میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں بس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے جی سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو کوئی اس کی سمجھ آ رہی سارے نو ندیم سمجھ آ رہی کر دی ادھر دھیان دیو سونے کے لیے نہیں آپ یہاں پر آئے ادھر دھیان دیں جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اس کی بے حرمتی کرنے والا جان سے مارا جائے ہم اس بات کو دیکھیں گے جی بھائی امید جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے جو اس میں کوئی کام کرے ہفتے دے دن یہودی کام نہیں سن کر سکتے بھائی انہوں نے ایک پیغام دیا تھا اس میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ وزٹ کر کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ لفٹ کا بٹن بھی نہیں پریس کرتے ہفتے والے دن کیونکہ انہیں خداوند کا حکم ملا ہوا ہے کہ اسے پاک ماننا کوئی بھی کام نہ کرے یہ خداوند کا حکم پورا کر رہے ہیں جی
6 दिन काम काज किया जाए, जी। लेकिन 7वें दिन आराम का सब्बत है जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। 6 दिन काम काज तुसी कर सकते हो रज के, लेकिन 7वें दिन खुदावन का की ये सबत है, उस दिन क्या करना है? जी आगे पढ़ें। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। जो कोई सबत के दिन काम करे वो जरूर, पता है मार डाला जाने का मतलब क्या है? उन्हें कत्ल कर देता जाए, संसार कर देता जाए, उसके मार दिया जाए। समझ आ रही बात की? जी जी। बस बनी इसराइल सब्बत को माने और पुष्ट उसे दानी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। जी, पुष्ट दर पुष्ट क्या करे बनी इसराइल? इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें आप सब। क्या करें? पुष्ट दर पुष्ट दानी अहद जानकर। दायमी अहद जानकर। जी, किसके लिए हुक्म है? इसराइल के लिए। जी भाई जी, पढ़े आगे। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। जी, क्या हुआ? ताजा दम कब हुआ? 7वें दिन। जी मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर आप अखबार निकाल लें भाई हमीद, 19 बाब, इसकी 3 आयत जल्दी से। जी 3 आयत पढ़ दें और फिर 30 आयत भी पढ़ लीजिएगा। इस बात की समझ आई है? हफ्ते वाले दिन वो ना कोई काम कर सकते थे, ठीक है, उन्हीं बाप तीसरे और हफ्ते वाले दिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर वो इसकी बेहरमती करते थे तो जान से मारने का हुक्म था। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया और खुदावन ने उसे पहाड़ पर से 19 भाई हमीद 19 क्या निकाला? अहबार अपने यशवा निकाला। अहबार जी तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे। तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे। और तुम मेरे शब्दों को मानना, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मेरे खुदावन बनी इसराइल से कह रहा है, तुम मेरे शब्दों को मानना। जी तुम नहीं, आप 30 आयत पढ़िए। 30 जी जी। तुम मेरे शब्दों को मानना और मेरे मकदस की तज़ीम करना। जी, मैं तुम मेरे शब्दों को मानना और मेरे मकदस की ताज़ीम करना। मैं क्या हूँ जी? मैं खुदावन हूँ। अगर अखबार 26 की भी आप पढ़ देते हैं तो 2 आयत जी, पहली सिर्फ दूसरे 2 आयत पढ़े। 26वें बाब की दूसरी है। तुम मेरे शब्दों को मानना और मेरे मकदस की तज़ीम करना, मैं खुदावंद हूँ। जी, तुम मेरे, उन्हें कहा गया था शब्दों को मानना है और वो शब्दों को मानते थे मेरे अजीज बहनों और भाइयों। लेकिन आज हम शब्द को क्यों नहीं मानते? हम शब्द को क्यों नहीं मानते? क्या हम इस्राएली हैं? क्या हम इस्राएली हैं? हम इस्राएली नहीं हैं। हम इस्राएली नहीं हैं। हम क्या हैं? हम वो लोग हैं जो कोई कौम ही नहीं थी। हम वो लोग हैं जो खुदा से वाकिफ ही नहीं थे। समझ आ रही है बात की? हम वो लोग हैं। इसलिए ये हुक्मनामे जो हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, सबके लिए मेरे और आपके यीशु मसीह ने सलीब पर इनको तमाम कर दिया। जब उसने कहा तमाम हुआ, ये हुक्मनामों की जो फरिश्त है, वो जो 613 हुक्म मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें दिए गए, जिसे कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तूने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात पर खता की, तो तू सब बातों में खताकार है। कितनी बातों में? तो फिर मुझे बताएं कि मेरे अजीज बहनों और भाइयों, किस तरह कोई इंसान इस शरीयत के तकाज़ों पर पूरा उतर सकता है?
मैंने कहा आप खुश नसीब लोग हैं जिन्हें रूह कुदस खुदावन ने दे दिया। अपनी जान का नजराना देकर वो आपकी जिंदगी में आ गया। आप शरीयत का पूरा एक ही ने किया और मेरा और आपका यीशु मसीह है। उसने कहा मैं शरीयत को खत्म करने नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। जिस तरह खुदा दे रहा था वो उस तरह से नहीं मान रहे थे, वो अपनी सोचों के मुताबिक मान रहे थे, वो अपनी हिकमत के मुताबिक मान रहे थे, वो अपनी लियाकत के मुताबिक मान रहे थे। आपको बात समझ में आ रही है? हालेलुया। वो अपनी लियाकत के मुताबिक मान रहे थे मेरे अजीज बहन और भाइयों। इसलिए यीशु मसीह आया और उसने उसी की सोच को, उसने बाप की सोच को लोगों के अंदर कन्वर्ट किया। उसने कहा ये तो इसलिए काम था कि खुदा क्या हो तुम्हें अपना बेटा बना ले। तो उसने इंसानों को लिया और खुदा के बेटे और बेटियां। कैसे हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं? जब आप पढ़ते हैं रोमियो के खत को, उसकी 14वें बाब को उसकी 8वीं आयत में लिखा जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं। कौन? जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो सब उसके बेटे हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, और हर फर्द और बशर पर योएल की किताब आप पढ़ते हैं, उसका जब आप दूसरा बाब पढ़ते हैं तो 28वीं आयत में लिखा है हर खुदावन का ये वादा है। खुदावन ने ये कहा कि मैं अपनी रूह को हर फर्द और बशर पर क्या करूंगा? नाज़िल करूंगा। और जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर ईमाल 2 बाब के अंदर, तो उसने अपने इस वादे को पूरा किया। हालेलुया। हर फर्द और बशर पर। ये सिर्फ पास्टरों पर नहीं है, ये सिर्फ मुबशरों पर नहीं है, ये सिर्फ रसूलों पर नहीं है, ये सिर्फ नबियों पर नहीं है, ये सिर्फ चरवाहों पर नहीं है, एक खात्मा तो नहीं, हर फर्द और बशर के लिए यह वादा है। जब आप ईमाल 2 बाब उसकी 39वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा ये वादा तुम तुम्हारी औलाद और दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। रूह कुदस का वादा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, रूह कुदस का वादा सिर्फ भाई अमीद के साथ नहीं है, भाई ब्रूनो के साथ नहीं है, भाई दनान के साथ नहीं है। ये रूह कुदस का वादा आप जितने बैठे हैं सबके साथ है। और सिर्फ हम सब नहीं, वो खुदा का बड़ा था, उसने सबके लिए जान दी है, उसने सबके लिए वादा लिखा। ये वादा तुम तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम देखते हैं यहाँ पर हम क्यों नहीं जी रोमियो का खत निकाले 14वां बाब मेरे साथ। हम देखते हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कोई एक दिन को मुकद्दस जानता है, कोई दूसरे दिन को। हर एक ने अपने अपने लिए दिन मुकद्दस ठहराए हुए, लेकिन हमारे लिए क्या है? मैंने कहा कि मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिनकी जिंदगी में रूह कुदस था, जिनकी जिंदगी में रूह कुदस था, उनकी जिंदगी में एक दिन मुकद्दस नहीं था। खुदा के नजदीक सारे दिन मुकद्दस है। रोमियो 14वां बाब निकालें भाई, 5वीं आयत से पढ़ दें बुलंद आवाज से। जी गौर से सुनिएगा। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। कोई तो क्या करता है? एक दिन कोई एक दिन को अफजल जानता है। क्या करता है जी? अफजल जानता है। कोई सब दिनों को क्या करता है? बराबर जानता है। जी। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे, पूरा एतकाद रखे। समझ आ रही बात की? जी। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है। कहता है जो कोई दिन को मानता है वो किसके लिए मानता है? वो खुदावंद के लिए मानता है। और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है। जो कोई खाता है वो भी खुदावंद के लिए खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाती। और खुदा का शुक्र करता है, मगर वो खुदा का वो भी शुक्र करता। जी। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। ना तो साडे लिए वो अपने लिए जींदा है, ना अपने लिए मरदा। जी। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके अंदर रूह कुदस है। हम जीते हैं तो किसके लिए जीते हैं? खुदावंद के वास्ते। क्या हम खुदावंद के वास्ते जीते हैं? ओए की ਅਸੀਂ पेट की खातर नहीं जींदे कि सानू रोटी का टाइम नहीं नजर आ रहा हुंदा? क्या हमें अपने रिश्तेदार नहीं नजर आ रहे होते? क्या हमें अपने काम काज नजर नहीं आ रहे होते? क्या हमें खुदा नजर आ रहा होता है या हमें दुनिया की रस्में नजर आ रही होती हैं? हम दुनिया की उलझनों में फंसे हुए हैं।
ہم بتاتے ہیں کہ ہم زرخیز زمین کا بیج نہیں ہے، متی 13 باب کے اندر لکھا ہے 8ویں آیت میں، ہم زرخیز زمین والا بیج نہیں ہے، ہم تو جھاڑیوں والے ہیں۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم برائڈ ہیں، ہم دلہن ہیں، تو ثابت کی کر رہے ہیں اسی جھاڑی دا بیج ہیں۔ جھاڑیاں دنیا کی خواہشوں نے دبوچا ہوا ہے، اور روٹی اگر ایک ٹائم ہم نہیں بھی کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم مار جائیں گے؟ تو مجھے یہ بتائیں اس سے بڑھ کر روٹی کوئی ہے؟ یوحنا 6 باب کے اندر یسوع مسیح نے کہا کوئی فرشتیاں دی غذا تواڈے باپ دادا نے کھادی سی، فرشتوں کی غذا ہے، وہ آسمانی من کھایا تھا انہوں نے بیابان کے اندر، تو بھی وہ مر گئے، تو بھی عام روٹی کی بات نہیں ہو رہی، اس غذا کی بات ہو رہی ہے، اس غذا کو کھا کر بھی وہ مر گئے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ سنتے نہیں ہوگے، سن کے انہوں نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ دیکھی جاندے ہو بندے تے دھیان گھر نہ رکھیا کرو، دھیان بھی کلام ہی جو دے۔ میرے عزیزو انہوں نے وہ غذا کھائی تو یسوع نے کہا پھر بھی مر گئے، پھر بھی مر گئے، لیکن یہ روٹی جو کھائے گا وہ ابد تک نہیں مرے گا۔ آمین۔ اس روٹی لئی تسی تگو دو کردے ہو، اس روٹی دے لئی اسی پیٹ کو یار کمائی، اسی پیٹ لئی کرے کمانا۔ بہت سارے میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے جو کہتے ہیں کہ جی کام بھی تو ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک کام نہیں ہے میرے عزیز۔ تو یسوع مسیح نے تو لکھا ہے قرآن 3:17 میں کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو یسوع مسیح کے نام سے کرو۔ کیا کام کرتے ہو تو یسوع مسیح کا نام لے کر کرتے ہو؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، عبادت کو عبادت ہی رہنے دیں، کام کو کام ہی رہنے دیں۔ میرے عزیزو ہاں جو کوئی کرتا ہے وہ خداوند کے لیے، اس نے کہا جو کام کرتے ہو وہ خداوند کے لیے کرو اور جی سے کرو، یہ الگ بات ہے میرے عزیزو۔ اس لیے اس روٹی کی تگو دو میں رہا کریں، اس خوراک کو کھایا کریں، اس بریڈ کو لیں جو آپ کو ابد تک مرنے نہیں دے گی، آپ کو کیا رکھے گی؟ تر و تازہ رکھے گی میرے عزیز بہنوں کے۔ جی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں، مرتے بھی ہیں تو خداوند کس کے واسطے؟ تو ہم کس واسطے مرتے ہیں؟ ہم خداوند کے واسطے نہیں مرتے، خداوند کی راہ پر ہم نہیں چلتے ہیں، ہم کسی اور راہ پر چلتے ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی کسی اور۔ خداوند کی راہ پر مرے ہیں تو رسولوں کو دیکھا ہے آپ نے، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو گرم تیل میں پھینک دیا گیا، کسی کو میرے عزیزوں تلوار سے قتل کر دیا گیا، کسی کو میرے عزیزوں الٹی سلیب دے دی گئی۔ وہ خداوند کے لیے مرتے ہیں یا ہم خداوند کے لیے مرتے ہیں؟ ہم تو سارے نالائق ہیں، اور یہ سنانے والے بھی چور ہیں جو کہتے ہیں باپ ابراہیم دی گود میں چلا گیا ہے، پاؤڈر پی کے مرا ہے تو باپ ابراہیم دی گود میں چلا گیا ہے، شراب پی کر مرا ہے تو باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا ہے۔ یہ تو ہم دونوں مرے ہیں، خدا کا کلام نہیں، خدا کی راہ پر ہیں ہم۔ میرے عزیزو ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم دھوکہ صرف اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ جی بھائی جی، بس ہم جیے یا مرے خداوند ہی کے ہیں۔ جی جیے یا مرے ہم خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ جی کیونکہ مسیح اس لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ مسیح اس لیے ہوا اور جیا۔ میرے عزیزو بہت سارے لوگ ہیں، اب آپ کو پتا ہے جن کے ہم نے سبق پڑھے ہیں ابھی، جو اس دن کو مقدس ٹھہراتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی یسوع مسیح آیا ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یسوع مسیح آیا ہی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ مسیح آیا ہے۔ میرے عزیزو ہم دیکھیں گے، وہ لکھا ہے، یہ بات ابھی پڑھی آپ نے، یہ بات یہودیوں میں مشہور ہے، ابھی یہ آج بھی ان میں مشہور ہے، یہ وہ واقعی مشہور ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ یسوع مسیح کو نہیں مانتے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ آیا۔ کرنتھیوں کا خط نکالیں میرے ساتھ، پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی میں پڑھ دیتا ہوں، تیسری آیت لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے پالوس رسول کو جب خداوند نے چنا، پالوس رسول کو جب خداوند نے برکت دی، اور اچھا آپ کو شاید واقف نہیں ہوں گے، کچھ دیسی یہودی بھی ہیں جنہیں ہم مسیحانک کہتے ہیں، وہ آدھے یہودی ہیں اور آدھے مسیحی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خطوط کو نہیں مانتے، وہ نئے عہد نامہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ پالوسیت ہے۔ کیا ہے؟
ये पालूस समझ आपको आ रही है ना? बात समझ में आ रही है जी? वो कहते हैं ये पालूसियत है, वो इसलिए इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरे और आपके खुदा की गवाही पालूस रसूल ने दी है, और पालूस रसूल की गवाही पतरस रसूल ने दी है, और पतरस रसूल सारे रसूलों के साथ खड़ा है। इनमें से एक रिजेक्ट तो सारे रिजेक्ट। मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं 15वीं आज के अंदर बहुत सारी दलीलें हैं। मैं यहाँ पर दलीलें देने के लिए नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए खड़ा हूँ। 15वें बाब की 3री आयत जी पढ़ दें। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह खुदा किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। जी किसके मुताबिक? किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। मेरे अजीजों, लिखा है कि क्या है जी? मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किसके? हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और दफन भी हुआ। क्या लिखा है? और दफन भी हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक, इस किताब के मुताबिक जी उठा है। कोई कहता है कि वो नहीं आया, उसे सलीब नहीं दी गई, वो बदल गया था, किसी और ने दी, तो ये आपका कलाम है, ये आपकी तालीम है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक दुनिया में आया, मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया! ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। हम और तालीमों को नहीं मानते, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं, हम बाइबल मुकद्दस को मानने वाले हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों। इसलिए कुछ कहते हैं कि यीशु ने 12 शिगिरत सन, कोई कहते हैं यीशु ने 70 शिगिरत सन, कुछ कहते हैं यीशु मसीह के 82 शिगिरत थे। इधर बेशुमार लिखे हैं, यहाँ 500 से ज्यादा लोगों ने देखा है। सो बेशुमार मेरे अजीजों यीशु मसीह के शिगिरत थे, हम उन्हें डिस्कस नहीं करते। हम ये कहते हैं कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए आया है और किताब मुकद्दस के मुताबिक आया है, और आपके लिए उसने जान दी है, आपके गुनाहों के लिए उसे जान दी है। हम पर यह फर्ज नहीं कि हम साल में एक मरतबा ईद मनाएं, हम पर यह फर्ज, ज्यादा ये फर्ज है कि हम खुदा के हुक्म को मानें। हालेलुया! जब रसूलों को 5वें बाब के अंदर ईमाल की किताब में मारा जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें कहा था कि ये नाम लेकर मुनादी मत करना। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी निस्बत खुदा का हुक्म मानना हम पर ज्यादा फर्ज नहीं है? हम पर ज्यादा फर्ज है कि हम खुदा का हुक्म मानें। हालेलुया! इसलिए दुनिया जो कहती है कहती रहे, हमने खुदावंद को मानना है। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमने अभी पढ़ा कोई एक दिन को मुकद्दस, वो एक दिन को मुकद्दस मानने वाले जो सबत को मानते हैं, वो मानते ही नहीं कि यीशु मसीह आया है, वो मानते ही नहीं। और मुख्तलिफ जो 3 कौमें हैं यहाँ पर बड़ी, जो ये कहती हैं, जिनका ये दावा है कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम बुत परस्ती नहीं करते, और तीनों ने अपने अपने दिन मुकद्दस ठहराए हैं। हम इतवार को क्यों इबादत करते हैं? इसलिए मेरे अजीजों के रसूल भी इतवार को इकट्ठे हुआ करते थे। हालेलुया! मैंने आपको 4 अनाजील में से हवाले दिए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा डिटेल के साथ। सबत के पहले दिन का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सबत के पहले दिन का लिखा हुआ है मेरे अजीजों। किसमें? मत्ती की इंजील के अंदर 28 बाब के अंदर आपने पढ़ा है, और फिर आपने मरकज की इंजील के अंदर उसके मेरे 16वें बाब के अंदर पढ़ा है, उसकी पहली आयत को पढ़ें। और फिर आप जब लूका की इंजील पढ़ते हैं, उसके भी मेरे 24 बाब के अंदर उसकी पहली आयत के अंदर पढ़ा हुआ लिखा हुआ है। आप यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं, उसके भी 21वें बाब 20वें बाब की पहली आयत के अंदर हफ्ते का पहला दिन लिखा है। अब हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह क्या करता है? उन सारों के दरमियान जो एक जगह पर बैठे हुए थे, उनके दरमियान आ जाता है। हालेलुया! और फिर इस हफ्ते के पहले दिन की प्रैक्टिस हम रसूलों को करते देखते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। आप मेरे साथ निकालिए ईमाल की किताब, उसका 20वां बाब जी निकल आया है, उसकी 7वीं है। देखें, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो पलूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके। कब वो जमा हुए हैं? कब जमा हुए हैं? समझ आ रही सारों को? कब जमा हुए हैं? हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? इतवार का दिन है हफ्ते का पहला दिन। और वो जमा हुए कि नहीं हुए? ये कौन सी बात है? जब आप ईमाल की किताब पढ़ते हैं, उसका 2रा बाब पढ़ते हैं, उसकी 42वीं आयत के अंदर लिखा है, जब उन्होंने कलाम को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, और ये 42वीं आयत में लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने। किसमें? रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखनी।
और रोटी तोड़ने और दुआ करने में। ये जो रोटी तोड़ने में लिखा है यहाँ पर, वो हफ्ते के पहले दिन रोटी तोड़ने में इकट्ठे हो गए सारे मेरे अजीज बहन और भाइयों। इसलिए समझे इस बात को। आप निकाले पहला ग्रंथियों 11वां बाब। समझ आ रही है आपको बात की? जी निकाल लिया आपने? नहीं, 12वां बाब निकाल लिया आपने? 12वां। एक मिनट पढ़िए। वो तो 11वें बाब की 23वीं वो है ना, 23वीं और 24वीं है। 16वां बाब निकाले जी। निकाल लिया पहला ग्रंथियों 16वां बाब, उसकी दूसरी है जिनकसा। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ अपने पास छोड़ा करे। हफ्ते के ये कौन सा दिन है? पहला दिन, इतवार का दिन कि ये हफ्ते का पहला दिन, पहला ही दिन है। हफ्ते का पहला दिन इतवार का दिन। कौन सा दिन है? क्या जी? इतवार के दिन। ये रसूलों की प्रैक्टिस थी। अब आप पढ़ते हैं पहला ग्रंथियों 11वां बाब, उसकी 23वीं आयत जिनकसा जब आप पढ़ते हैं तो ये रोटी तोड़ने के लिए वहां पर इकट्ठे थे। और ये प्रैक्टिस रसूल किया करते थे। हफ्ते के पहले दिन जमा होते थे। हफ्ते का पहला दिन इतवार है और हम इतवार इसलिए मनाते हैं, हम इतवार इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि हम उसके जी उठने का इकरार करते हैं। हालेलुया। हर इतवार इकरार करते हैं। लेकिन रसूल ऐसे नहीं थे। रसूल ऐसे नहीं थे। वो हर रोज जमा होते थे। कब? वो हर रोज जमा होते थे। एक दिल होकर हर रोज जमा होते और यीशु मसीह के नाम को जला देते। रूह कुदस जिसकी जिंदगी में आता है तो वो एक दिन वाला मसीही नहीं होता, वो एक इतवार वाला मसीही नहीं होता, वो एक साल वाला मसीही नहीं होता, वो एवरीडे वाला मसीही होता है। वो हर रोज खुदा की खिदमत करता है, वो हर रोज खुदा के नाम को जला देता है। हालेलुया। तो मेरे दिलों वापस 28 बाब पर चलते हैं। थके तो नहीं? मत्ती की इंजील 28 बाब के ऊपर वापस हम आते हैं। आपको ईस्टर का मतलब पता चल गया? हम इस रात देवी की इबादत करने वाले नहीं हैं। क़यामत अल-मसीह बना रहे हो तो फिर साल में एक मरतबा मत मनाओ, फिर हर इतवार मनाओ, उसके चरणों में आओ, फिर जैसे वो चाहता है वैसे मनाओ, ऐसे इबादत करो जैसे वो चाहता है, जैसे उसकी शायाना शान है। रोमियो 12 बाब को आप पढ़ेंगे, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है अपने बदन, क्या अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। ठीक है। अब जब उसकी हजूरी में आओ तो फिर उसे पता चले कि उसकी हजूरी में उसका बेटा आया है। जैसे उसे बाप तस्लीम करते हो तो फिर उसकी इज्जत भी बाप वाली करे। उसने कहा अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? जब उसकी आप इज्जत नहीं करेंगे, बाप को बुला के 10:30 पे आओ तो उसी 12 बजे, एक इज्जत है बाप की? ये कोई इज्जत नहीं। बाप आपको कहता है सादगी में आओ तो तुसी जनाब मेरी उन चिड़ान नहीं उस तरह हो, ये केड़ी बाप की इज्जत है? ये बाप की इज्जत नहीं है। ये दुनिया के मामलातों से अभी कब निकलेंगे? और अब तो जंगे मजदूर का भी आगाज हो चुका है। अब दुनिया इख्तिताम की तरफ जा रही है तो हम क्या कर रहे हैं? और लोगों की तरह मत बने। यहाँ पर 2 तरह की मुनादी हो रही है जी। लिखा है सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फूटते वक्त, उम्मीद करते हैं जी, सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फूटते वक्त मरियम मगदलीनी दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। आपको पता है उस पर इतना बड़ा पत्थर क्यों रखा गया था? उसे कोई हटा ना सके। पता है किसने रखवाया था?
ईदा मनाई जाओ, पता ही नहीं किस की काम में की फरीसियों ने फकीयां तो फरीसियां ने, उस वक्त के आलमों ने, वो जो दावा करते थे हम बाइबल को बहुत जानते हैं, मूसा ने ये कहा है, मूसा ने ये कहा है, ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है, जो हवाले दे रहे हैं, कलाम को कलाम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, कलाम को उन्होंने कहा इस धोखेबाज ने कहा था। किसने? यीशु मसीह को धोखेबाज कहा गया। और उन्होंने मुंह न गया सी सीधे साबित करने उन्हें हमारे काम किरदार साबित कर रहे होते हैं कि वो, मेरे अजीज बहन और भाइयों, कि वो क्या है। क्योंकि देखें, कोई भी आसमान की तरफ मुंह करके ये नहीं कहता कि खुदा नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा है झूठ ना बोलो, तो झूठ बोलोगे तो कह रहे हो ना कि खुदा नहीं देखने दिया, खुदा नहीं है। उसने कहा गुनाह ना करो, तो गुनाह करोगे तो फिर ये साबित कर रहे हो ना कि खुदा नहीं है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कोई ऊपर मुंह करके नहीं, अपने अमलों से पहचाने जाओगे। दरख्त मेरे अजीजों अपने फलों से पहचाना जाता है। ये सच्चे हो तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, रूहानी हो तो रूह ਦੇ फल भी ਤੇ लगे होण। माल्टिਆਂ ਨਾਲ अमरूद ਤੇ नहीं लगदे ना। जिस्मानी दरख्त होवे ते रूहानी फल लगे होने एक पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। मेरे अजीजों, आपको मैं ये देता हूँ वाला ऊपर जी, हम पढ़ते हैं 27वें बाब के अंदर मत्ती की इंजील उसके 26वीं आयत के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी नोटबुक लाया करो, लिख लिया करो। इतने लिख दिता जाता है, कोई देख रहा है इसकी तरफ? किसी को एक भी हवाला शायद मुश्किल से याद हो जो पिछले इतवार बाइबल उन्होंने पैगाम दिए। ये ऐसे पैगाम तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही वो आके थे खड़ा होकर कलाम सुनाना शुरू कर देंगे। किसके लिए है? हमसे वोट बढ़ाने के लिए, हम वोट बढ़ाने के लिए। 10वां बाब पढ़ लेना, पहला करंथियों, जो उस वक्त उस पर वोट बढ़ाए हैं ना, उनका क्या सदे बाब का पहला करंथियों 10वां बाब पढ़ लेना, पहली 10 से याद पढ़ना। ये 10वीं मैं पढ़ रहा हूँ कि वो हलाक हुए जो उस पर वोट बढ़ाए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं बुरा हो सकता हूँ, वो बुरे हो सकते हैं, कलाम बुरा नहीं होता। कलाम की इज्जत करें, कलाम की बेहरमती मत करें। मुझ में कमी हो सकती है, मुझ में कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें कमजोरी नहीं है। हालेलुया। ये पाक करता है, ये पवित्र करता है। जी, मैं खुद पढ़ देता हूँ। 27वीं चैप्टर है मत्ती की इंजील का, उसकी 26वीं आयत के अंदर लिखा है, और दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, 62 जी 62 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा। जी, किसके पास? किन्होंने? मजहबी लोगों ने। वो जो कहते हैं हम बड़े खुदा परस्त लोग हैं, हम बड़े ईमानदार लोग हैं। समझ आ रही है बात की आपको? जी नहीं तो आपको नहीं समझ। जी मेरी अजीज है, इस बात को समझें। फकी फरीसियों, मेरे अजीजों, लिखा है, और दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। की क्या सी उन्हें? 3 दिन के बाद जी उठूंगा। कहते हैं उस धोखेबाज ने ये कहा था। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए। क्या की जाए? कब्र की निगरानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं, उसके शागिर्द उसे चुरा ले और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। कि शागिर्द चुरा कर ले जाएं, लोगों से ये कहें कि वो जी उठा है, तो ये पिछला धोखा पहले से भी बदतर हो। पिलातुस उन्होंने की जवाब देता है। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, वो तुम्हारे को पहरे ले लेंगे। जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उनकी निगरानी करो। क्या करो? बस वो पहरे वालों के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। पत्थर पर क्या की? मोहर की।
भारी पत्थर था मोहर की, और आपको पता है उस पत्थर पर कौन बैठा था? उस पत्थर पर फरिश्ता बैठा था, जो इस बात की दलील दे रहा था कि मेरा खुदा जो है मेरे अजीजों, और जो आसमानी ताकत है वो जमीनी ताकतों से नहीं डरते। वो कब्र के ऊपर ही बैठ गया, आओ फिर जड़े आने लेने आ जाओ। वो कब्र के ऊपर ही बैठ गया, पत्थर के ऊपर ही बैठ गया मेरे अजीजों। इसलिए समझे इस बात को, ये रोम ने मेरे अजीजों ये क्या चाल चली, और उन्होंने क्या किया, उनको कहा आपके पास प्यारे वाले हैं, आपके पास प्यारे वाले हैं, ठीक है। ये सब एक रचा रचाया एक प्लान है मेरे अजीज बहन और भाइयों। ये जो आज ये मना रहे हैं ना साल की ईस्टर, ये रचा रचाया प्लान है। मत इसकी तरफ देखें, कलाम की तरफ देखें। और फिर क्या है मेरे अजीज बहन और भाइयों, फिर हम देखते हैं उसकी सूरत लिखा है, तीसरी आयत पढ़ा, उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे। क्या हुए? कौन से निगहबान? जिन्होंने पैसे देके मुनादी कराई। ये आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये डर गए जब हमने ये सारा हवाला पढ़ा है। अगर आप इसको आगे पढ़ते हैं ना तो लिखा हुआ है 11वीं आयत के अंदर मेरे दिलों, ये लिखा है, जब वो जा ही रही थी तो देखो प्यारे वालों में से बाद ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कायनों से बयान किया। क्या किया? ये माजरा बयान किया, और इन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशहूर किया, और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर, क्या देकर? बहुत सा रुपया देकर क्या कहा? ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। क्या हुआ? जे तुसी निगहबान हो, जे पहरेदार हो, ते सुते किवें हो? फिर तुसी पहरेदार ही नहीं हो, निगहबान ही नहीं हो, ठीक है। और फिर लिखा है उनको पैसे दिए गए। ना निगहबान ठीक थे और ना ही उन्हें उनसे काम करवाने वाले ठीक थे। और जब आप पढ़ते हैं तीमुथियुस के खत को, तो वहां पर निगहबान की फहरिस्त है, पढ़ लीजिए। आज भी बहुत सारे निगहबान पैसे के लिए मुनादी कर रहे हैं, जैसे ये पैसे के लिए मुनादी कर रहे थे। आज भी पैसे के लिए मुनादी कर रहे हैं बहुत सारे निगहबान, जैसे ये मेरे अजीजों यीशु मसीह के खिलाफ मुनादी कर रहे थे। यीशु मसीह के खिलाफ भी मुनादी है जब आप दुरुस्त तालीम नहीं देते, जब आप लोगों को सच्चाई की राह नहीं बताते, जब आप उसकी दुल्हन को तैयार नहीं करते उसकी आमद के लिए, तो ये निगहबान यही है जो पैसे लेकर मुनादी करते हैं, जो वाकई में आखिर में पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, जो पैसे जेब में डालते हैं और पूछते नहीं है ये पैसा कहां से आया, जो दायतियों पर तालीम तो देते हैं, जो चंदों पर तालीम तो देते हैं, लेकिन ये तालीम नहीं देते कि आप तौबा कर लें, आप रूह कुदस में शरीक हो जाएं, आप खुदावंद के नाम को जलाल दें। जो लोगों को ईदों के लिए तो उभारते हैं लेकिन ईदों का मतलब नहीं बताते, जो लोगों को रोजे का तो बताते हैं लेकिन वो रोजे का मतलब नहीं बताते, जो लोगों को मेरे अजीज बहनों और भाइयों सिर्फ चिकनी चौपड़ी बातों से क्या करते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। आप कलाम की बात करें, वो कहेंगे हमारे पास्टर ने ये कहा है, हमारे पास्टर ने ये कहा है, हमारा पास्टर झूठ नहीं बोलता, हमारा पास्टर शानदार है। पास्टर आपको नहीं बचाएगा, ना कोई पोप आपको बचाएगा, ना कोई फादर, ना दुनिया का कोई खादम आपको बचाएगा। आपको बचाएगा तो सिर्फ खुदा का। और जब निगहबान दुरुस्त होंगे तो फिर मेरे अजीज बहनों और भाइयों, फिर वो सोएंगे नहीं, अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। इसलिए ये पैसे लेकर मुनादी करने वाले कह रहे हैं उन्होंने यीशु मसीह को चुरा कर ले गए, और उनमें आज भी ये बात लिखा है कि मशहूर है। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है 14वीं आयत में, और अगर ये बात हाकम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। कौन कह रहे हैं? फक्की फरीसी मजहबी लोग ये कह रहे हैं उन निगहबानों को, उन जिस्मानी लोगों को, वो ऐसी कवर कर लांगे थे, इस चीज की टेंशन ना लो, सानू पता है एदी सजा संसारी ये मौत है, लेकिन असी तो बचा लवांगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये क्या है? ये पैसे का कमाल है, ये ताकत का कमाल है। मुनादी क्या रुक गई? मुनादी क्या रुक गई? वो पैसे वालों ने पैसे का जोर लगा लिया,
हुकूमतों ने अपना जोर लगा लिया, फिर भी आज यीशु मसीह के नाम को सारी दुनिया जलाल देती है, क्योंकि सच्चाई रुक नहीं सकती। निकोदेमुस कहने लगे इन्हां शागिर्दां नूं मरवा फड़ गए। उन्हें क्या यार, तुहाडे तो पहले भी थे, ਇਹਦੇ ਤੋਂ पहले भी एक बंदा आया सी, उन्हें बड़ा जनाब मेरी ढंडोरा पीटिया। अगर ये झूठा होगा तो इसको भी दुनिया मार देगी, अगर ये सच्चाई हुई तो ये रुक नहीं सकती। हालेलुया, सच्चाई नहीं रुक सकती मेरे अजीज बहनों और भाइयों। इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को जानते हैं, पहचानते हैं। मैं कभी फ्रॉड ना करूं, मेरे अंदर कभी घमंड ना आए कि मैं कल ही सब कुछ जानना। ये मुझे पता है और कोई ईमानदार है ही नहीं है। जैसे एलिया कह रहा था, क्या कर रहा था, मैं ही अकेला बचा हूं। खुदावंद ने कहा एलिया बैठा है, तू अकेला नहीं है, 7,000 और हैं जिन्होंने बुतों के आगे सजदा नहीं किया। 7,000 और हैं, इसलिए हम भी अकेले नहीं हैं, बेशुमार और हैं जो यीशु के दीवाने हैं। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कभी अपने फहम पर, अपने इल्म पर, कभी किसी चीज पर हमें तकिया नहीं करना। हमें तवक्कल करना है तो खुदा के कलाम पर तवक्कल करना है। इसलिए जड़े ईस्टर के अंडे बनते ने ना, ये एग्स दे रहे हैं, ये ईस्टर एग हैं, ये रॉबिट्स हैं ईस्टर के, ये सब कुछ, ये सब फजूल रसूमात हैं। ये बाइबल से मेल ही नहीं खाती, दूर दूर तक कोई तल्लक ही नहीं ईस्टर से बाइबल मुकद्दस का। सब ये धोखा देने वाले हैं, ये पैसों की खातिर मुनादी कर रहे हैं। किसी को कहां से ऐड आती है, किसी को कहां से आती है। पादरी जब तनख्वाह रखे हुए थे, तनख्वाह कलाम उन्हें सुनाना है। अगर खादम किसी के नीचे रहकर कलाम सुनाएगा तो वो अपने ऊपर वाले के मुताबिक सुनाएगा, लेकिन खादम रूल कुदस के ताबे होना चाहिए। तो जब रूल कुदस के ताबे होगा तो वो फिर रूल कुदस का कलाम आप तक पहुंचाएगा, फिर वो सच्चाई ही आपको पहुंचाएगा। इसलिए मेरे दिलो, आज इस रस्मी मुसीबत से निकलने की जरूरत है। आज हर एक उस बात से निकलने की जरूरत। दुनिया क्या कहती है कहने दे, दुनिया की तरफ मत देखे। दुनिया तो वो है जो उसके होशिना के नारे लगा के बाद में कहती है उसे पकड़ो। और ये जो होशिना के नारे लगा रहे थे, जो खजूरों की डालियां हाथ में पकड़े हुए थे, जो गदे लेकर चल रहे थे, आज भी इस रस्म को मना रहे थे, वो भी इस बात की दलील दे रहे थे। जिस तरह वो पकड़वाने वालों ने उसकी हमदोसना की, उसके आगे डालियां फेंकी, उसके होशिना के नारे लगाए, हम भी तो वही हैं, हम भी तो वही है, वो भी वही थे, उन्होंने पकड़वाया था। आज भी आप उनकी नकल उतार रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था। आप नबियों और रसूलों के कलाम पर क्यों नहीं खड़े होते? कहां पर वो आपको रस्में दे रहे हैं, ये रस्में बनाए, वो रस्में बनाए, क्यों नहीं कलाम पर खड़े होते? जब कलाम पर खड़े नहीं होंगे तो कलाम वाली बरकतें नहीं है आपकी जिंदगियों पर। आज जरूर जाकर गौर कीजिएगा, जरूर गौर कीजिएगा, कौन सी बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई नेमतें हमारे पास हैं, कौन सी बरकतें हमारे पास है बाइबल मुकद्दस की लिखी हुई। नहीं है तो कसूर बाइबल का नहीं, कसूर हमारा है, कसूर आपका है, कसूर बाइबल का नहीं। बाइबल तो आपको सच्चाई बता रही है, खादम तो शोर मचा रहे हैं। मत्ती 22 बाब के अंदर आपने पढ़ा है उस तमसील को। मेरे चीजों वहां तो बताया जा रहा है, खादमों की ड्यूटी लगी है, कोई तेल से उसे धो रहा है, साफ कर रहा है, कोई नहला रहा है, कपड़े पहना रहा है, वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जिसकी जो लगी हुई है। आज मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वक्त का पैगाम, ये बातें हम तक, ये बातें मैंने सजदे करके नहीं हासिल की, ये भाई ब्रैनम ने हासिल की हैं। खुदा ने उनसे बात की है, खुदा ने उन्हें सिखाया है, और वो खुदा के करीब रहने वाला इंसान था। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिए, आज आप जब नाम लेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे। यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने इस संडे से पिछले संडे का भाई फ्रैंक का पैगाम सुना, तो वो कहने लगा कि लोगों ने मुझे लोंडेबाज कहा है, लोगों ने मुझे धोखा कहा है, धोखेबाज कहा है, लोगों ने मुझे फ्रॉडिया कहा है, लोगों ने मुझे आठवां फरिश्ता कहा है, लोगों ने मुझे बुरे बुरे तालों से, लकाबों से नवाजा है, लेकिन मैं लोगों की तरफ नहीं देखता रहा। मैं कलाम सुनाता रहा हूं, मैं कलाम सुनाता रहा हूं, मैंने कलाम प्रीच किया है, मैंने लोगों को कलाम सुनाया है, मैं लोगों को किसी भी डिनोमिनेशन की तरफ नहीं मोड़ता, मैं लोगों को कलाम सुनाता हूं। हम आज उसका नाम इसलिए लेते हैं, या आप इधर खड़े होकर कहते हैं, उधर बैठ कर कहते हैं, उधर जाकर कहते हैं जी भाई फरमान ने ये बात की थी, ये बड़ी अच्छी लगी है, तो फिर जिसने हम तक सच्चाई पहुंचाई, हम नहीं कह सकते कि हमें बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। बिल्कुल
तो क्या यकीन माने, लाहौर में सेमिनार था, डॉक्टर जमील नासिर साहब के चर्च में था। तो वहां पर भाई फ्रैंक ने ये कहा, ऐसे हाथ में बाइबल उठाकर उन्होंने ये कहा, जब मैं ब्रदर ब्रैनम के सामने गया था तो ब्रदर ब्रैनम ने मुझे ये कहा था, फ्रैंक तेरे लिए दुनिया की कोई बात अतली नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये बाइबल मुकद्दस अतली होनी चाहिए। उसने ऐसे ही लहरा कर कहा, मैं आप सबके लिए भी ये भी बात कहता हूँ, आपके लिए फ्रैंक की बातें अतली नहीं होनी चाहिए, आपके लिए कलाम मुकद्दस की बात अतली नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप इस किताब से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, कभी भी मार नहीं खाएंगे, कभी भी आपको कोई ठोकर नहीं खिला सकेगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अब कब कितना वक्त मिलेगा कि हम इन रसूमात से बाहर निकलें, हम इन रस्मों से बाहर निकलें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस जमाने के बाद कोई और जमाना नहीं है। बाखुदा बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इससे बेशतर यीशु मसीह आए। क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसको इस बात का इल्म हो कि वो कल तक जिंदा है, परसों तक जिंदा है, या उसे अपनी जिंदगी के दिनों का पता है? कोई नहीं पता। तो क्या आज ही का दिन कबूलियत का दिन नहीं है? आज ही का दिन निजात का दिन नहीं है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए आया, उसने आपके लिए जान दी, आपके लिए जी उठा? तो शोक किस तरह का मना रहे हो? आपने 24 बाब लूका की इंजील जो शोक मना रहे हैं, शायद उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। 2 शख्स जा रहे थे अमूस की राह पर, जा रहे थे, यीशु मसीह उनके पास आ गया और यीशु मसीह लिखा है उनकी आंखें बंद की गई। यीशु मसीह ने पूछा, क्या माजरा है? उसने कहा, तुझे नहीं इल्म, तुझे नहीं इल्म? आज पूरी दुनिया च सोग है, आज सारे यरूशलेम दे विच सोग मनाया जा रहा है। क्या है? सोग मनाया जा रहा है। हम भी इसके लिए दुखी हैं। क्या है? यीशु ने पता है क्या कहा? नबियों की बातों को मानने में कम एतका दो, नबियों की बातों को मानने में कम एतका दो। वो तो खुशी की खबर ने बता कह रहा, तो कम एतका दो। तो आनू खुश होना चाहिए कि यीशु मसीह जी उठा है, तो तुसी उल्टा सोग मना रहे हो। वो आपको निजात दे रहा है और आप सोग बना रहे हैं। वो आपको बरकतें दे रहा है और आप सोग बना रहे हैं। वो आपको नेमतें दे रहा है और आप सोग बना रहे हैं। अपनी अपनी बातों की फिक्र में है सारे। फिर लिखा है, उसने मूसा और नबियों के सहीफों से शुरू करके जितनी बातें नबियों के सहीफों में लिखी थी, उसकी आपको उसने सारी समझाई। और पता है जब वो समझिए तो क्या हुआ? पता है जब वो समझिए तो क्या हुआ? वो यरूशलेम को खुशी खुशी लौटे। कैसे? वो यरूशलेम को खुश खुश होकर लौटे। यरूशलेम से खुदा का कलाम सादर होगा। यरूशलेम बुजुर्गों का शहर है, खुदावंद का शहर है। यरूशलेम के साथ जमीनी भी वादे हैं, आसमानी भी वादे हैं। वो खुश होकर लौटे। तो अगर आप कलाम में आपको सच्चाई बताई जाए, आपको नबियों रसूलों की नींव बताई जाए, आपको कलाम बताया जाए, तो क्या आप खुशी से नहीं लौटेंगे कलाम में? तो फिर आए ना वापस कलाम में आए, निकले इन रसूमात से, निकले इन दुनिया की एजाजात से, तमाम इन बातों से निकलकर आप कलाम के अंदर आए, वापस यरूशलेम के अंदर आए। ये जो रूहानी यरूशलेम है, हम रूहानी इसराइल हैं, हम रूहानी यरूशलेम है। हमारे साथ जमीनी वादे नहीं हैं, हमारे साथ आसमानी वादे हैं। हालेलुया। और हम उस सरजमीन के मुंतज़िर हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो क्या है। चले मैं एक वाला पढ़ देता हूँ इब्रानियों के ख्याल से। थक हो मेरा ख्याल है, अगर हम खुदा की उम्मत है। पढ़ें इब्रानियों का खत्म 4वां बाब पढ़ेंगे। अब देखें 8वीं आयत से, चले मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर यीशुआ का भी जिक्र है, लिखा है, और अगर यीशुआ ने इन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। अगर आराम में दाखिल किया तो दूसरे दिन का जिक्र ना करता। लिखा है 9वीं आयत में, पस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है। हालेलुया। जो खुदा की उम्मत है उसके लिए सबत का आराम बाकी है, याद रखिएगा। और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुए, जो उसके आराम में दाखिल हो, उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। जो उसके आराम में दाखिल होगा, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, क्या पौलुस रसूल उस आराम में दाखिल होगा कि नहीं? तो क्या पहले ग्रंथियों के बाब के अंदर पहली आयत के अंदर ये पौलुस रसूल ने नहीं कहा कि मेरी मानत बनो जैसे मैं मसीह की मानत बनता हूं? जो जो अपने काम, क्या पौलुस रसूल ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ मुकम्मल कर ली?
मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए लिखा है, कहता है जो उस आराम में दाखिल हुआ उसने अपना काम मुकम्मल किया तो वो उस आराम में दाखिल हुआ। सबत का मतलब आराम है, याद रखिएगा। हमारे लिए, खुदा की उम्मत के लिए भी सबत का आराम बाकी है। समझ आ रही है बात की? जी। 11वीं आयत में लिखा है, बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। क्या जी? उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। कहता है आओ बस हम कोशिश करें उस आराम में दाखिल होने के लिए। क्या कोई कोशिश करता है? क्या कलाम में नहीं लिखा कि कोशिश में सुस्ती ना करो? तो कोशिश में सुस्ती ना करें। आगे लिखा है, खुदा का कलाम क्या है जी? जिंदा और मौसूर और हर एक दो धारी तलवार से तेज और जान और रूह और बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। वो जांचता है मेरे अजीजों कि हमारे क्या इरादे हैं। तो इसलिए आज हम इस बात का इकरार करें, खुदावंद की हुजूरी में झुकें और हम हर एक उस रस्मी बात से जुदा हों, तो फिर ही हम सबत के आराम में दाखिल हो सकते हैं। और अब आपको शायद कितने लोगों को पता चल गया है कि सबत का दिन कौन सा है? बोले कोई ना, हाथ खड़ा करे। कितने लोगों को पता चल गया कि सबत का दिन कौन सा है? जी मैं पूछ लूं, मैंने पूछना है, सबत का दिन कौन सा है? कितने लोगों को पता चल गया है? हफ्ते का पहला दिन केड़ा सबत का दिन? जी हफ्ते का दिन, सबत का दिन कौन सा है? हफ्ते का दिन सबत का दिन है। क्या है? हफ्ते का दिन। इसीलिए तो कहता हूँ देखते रहते हो, ध्यान नहीं है। रूह बदन जान ये नहीं इतने सिर्फ फिजिकली तौर पर बैठे हो तो रूह घर ही होने वाले मेहमाना नहीं आना है, रोटी पकानी है, खीर भी पकानी है, पता नहीं की करना। रूह बदन जान से उसके नाम को जलाल दो तो ये समझ आएगी मेरे अजीजों। इसलिए मेरा ईमान है कि आपको समझ आई होगी। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? हफ्ते का पहला दिन कौन है? इतवार। और सबत का पहला दिन कौन सा है? सबत का पहला दिन इतवार है यार। ठीक है, हफ्ते का पहला दिन क्या है? ठीक है, सबत से अगला दिन क्या है? इतवार है। ठीक है, सबत से अगला दिन इतवार है। इस बातों को याद रखें, इसलिए हम उसके नाम को जला देते हैं। हम कोई रसूमात को नहीं समझते। ठीक है, हफ्ते का पहला दिन इतवार है। ठीक है जी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और अपने जलाल में। जी भाई।